لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا علم فيما علم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے درس میں یہ بات سامنے آئی کہ مومن مسلمان اس حال میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہ ہو، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب وزن ہوگا اعمال کا تو میرے اور آپ کے نیکیوں کا وزن بڑھ کر ہو، نیکیوں کا وزن زیادہ ہو، کیونکہ جتنے مواقع مجھے اور آپ کو اللہ نے نیکیوں کے عطا فرمائے اور گناہ کے معافی کے جتنے موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اس کے باوجود بھی اگر میرے اور آپ کے کھاتے میں گناہ باقی ہے تو کل قیامت کے دن وہ شرمندگی کا اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ خاص طور پر رمضان کی مغفرت کے دن چل رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اس کے بارے میں اپنے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ نبئ، میرے حبیب بار بار میری طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں، ایک بار نہیں، عربی گرامر کی روح سے نبئ باب تفعیل ہے، اس کا معنی بار بار کسی چیز، جیسے اذن فی الناس، بار بار اذان، بار بار اذان، اذن یؤذن تعظیم۔ تو اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی، اعلان کر دو میری طرف سے، خبردار کر دو میری طرف سے، اطلاع کر دو میری طرف سے، کن کو؟ عبادی، میرے بندوں کو۔ اللہ نے سب کو کیا فرمایا؟ میرے بندے۔ پھر ذرا قرآن کریم کا انداز اور اللہ کا جو انداز ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا انی، ایک تو پنجابی دانی ہے، عربی کا ہے انی، پکی بات ہے کہ میں، پھر ساتھ فرمایا انا، بھائی میں ہی، الغفور، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ الغفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ میرے حبیب بار بار میرے بندوں میں یہ اعلان کر دو کہ میں اللہ اپنے بندے کے گناہ کو بہت معاف کرنے والا اور اپنے بندے کے ساتھ بہت رحم والا معاملہ کرنے والا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر میرے اور آپ کے پاس کچھ رہ جائے، اس کے باوجود بھی میرے اور آپ کی زندگی غفلت کی زندگی ہو، رمضان آیا، گزر رہا ہے، گزر جائے گا، اور میں اسی طرح کے گناہ میں مبتلا، یا میرے کھاتے میں اسی طرح کے گناہ ابھی باقی، تو پھر اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ بھی اعلان کر دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔
वअन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, ये भी ऐलान कर दो कि मेरा अज़ाब, पहले फरमाया मैं खुद, और यहाँ पर फरमाया मेरा अज़ाब, हुवल अज़ाबुल अलीम, वो बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह किसी का सामना ना करना पड़े। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि रमजान का ही महीना नहीं, मेरे और आपकी पूरी जिंदगी इस तरह के गुजरे कि मुझसे पहले मैं और आप पहले अपने आप को गुनाह से बचाने की कोशिश करें, और अगर खुदा न खास्ता गुनाह हो जाए तो फिर तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन से गुनाह हो जाए तो उसको चैन नहीं होता जब तक वो उस गुनाह से तौबा नहीं करे। हुजूर ने फरमाया कि मोमिन बंदे के लिए गुनाह ऐसा है जैसे हो जाए उससे और बंदे के ऊपर एक पहाड़ जितना वजन पड़ा, वजन बंदे के ऊपर आ जाए तो बंदा उस वजन को हटाने की कोशिश करता है। और मुनाफिक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह ऐसा ही है जैसे मक्खी आकर नाक के ऊपर बैठ गई, उस यूं की तब मक्खी उड़ा दी, बस गल खत्म, उसको परवाह कोई नहीं। बहरहाल कल मैंने आपसे बात की थी कि क़यामत के दिन की बात करेंगे, तो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी के गुनाह बाकी है उसके ऊपर और उसको मौत आ गई, तो कुरान कहता है, हदीस में आता है, जब कल क़यामत का दिन होगा तो इस बंदे के खिलाफ गवाहियों पर गवाही आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मुजरिम बंदा होता है, पहले मुल्जिम होता है, जब उसके ऊपर गवाही आ जाती है तो वो मुजरिम बन जाता है, फिर अदालत उसको फैसला सुनाती है। कितनी गवाहियां हैं जो कल क़यामत के दिन मेरे और आपके खिलाफ हो सकती है, और फिर मैं और आप अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने लिए कौन से सिफारिशी ढूंढ सकते हैं, यही दो बातें करते हैं। कुरान करीम कहता है कि जब बंदा गुनाह करता है और उस गुनाह से फिर तौबा नहीं करता, क़यामत के दिन पहुंचेगा तो एक गवाह इसके खिलाफ फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते इसके खिलाफ गवाही देने के लिए मैदान हशर में पहुंचेंगे, और अल्लाह का इरशाद है, वजाअत कुल्लु नफ्सिम माहा साइक़ुन व शहीद। हर बंदा मैदान हशर में इस तौर पर आएगा, माहा साइक़ुन व शहीद, एक फरिश्ता उसको पकड़ के लेके जा रहे होंगे और एक फरिश्ता उसके साथ गवाही देने के लिए आया होगा। उसकी सारी जिंदगी के फाइल उसके हाथ में होगी और खोल खोल कर उसके खिलाफ गवाही देता है। दूसरी गवाही, मा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। हर इंसान के साथ उसके आमाल लिखने वाले फरिश्ते, एक दाएं कंधे पर बैठा हुआ फरिश्ता और एक बाएं कंधे के ऊपर बैठा हुआ फरिश्ता, और इस इंसान के नामे आमाल में लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। अल्लाह कल क़यामत के दिन इरशाद फरमाएंगे, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आज अपना नामे आमाल खुद पढ़ ले, तेरे खिलाफ किसी के फैसले की जरूरत नहीं, तू अपने बारे में खुद फैसला कर ले। जैसे हम कहते हैं ना, यार तेरे हाथ में इख्तियार है, तुझे ये इंसाफ दे देते हैं, तू फैसला कर। यही इंसान फिर गुनाह की जिंदगी गुजार कर क़यामत के दिन पहुंचा, तौबा के बगैर मौत आ गई, तो इंसान कहेगा, हाय क्या हो गया, अफसोस मेरे इस नामे आमाल को, इसने तो ना कोई छोटा गुनाह छोड़ा है और ना कोई बड़ा गुनाह छोड़ा है, सबके सब उसमें दर्ज है और सब मेरे खिलाफ मौजूद है।
दूसरी गवाही अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही होगी। अल्लाह कुरान में फरमाते वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे या अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था मैं इनके ऊपर गवाह था। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला, इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि गवाह चार तरह के इस इंसान के खिलाफ आएंगे। फिर अल्लाह ने फरमाया फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही, उसके साथ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही। वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदा वकुन्तु अलैहिम शहीदा मा दुम्तु फीहिम फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदा वजिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। ये सारी गवाहियां हो रही है। एक सबसे बड़ी जो गवाही आएगी जिसका इंसान को बिल्कुल ख्याल ही नहीं था। फरिश्ते हैं, मैं उनको देख नहीं रहा, लिख रहे हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक गवाह जो इस इंसान को नजर भी आ रहा है, ये इंसान उसी को खुश करने के लिए सब कुछ करता है, वही कल क़यामत के दिन इसके खिलाफ गवाही। वो कौन से हैं? इस इंसान के अपने आज़ा है। हाथ गवाही देगा, ज़बान गवाही देगी, कान गवाही देंगे, पांव गवाही देंगे। इंसान के जिस्म का एक एक उज़्व, एक एक जुज़ गवाही देगा। अल्लाह कुरान में फरमाते सूरह यासीन में अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज इसके दिन इस इंसान के ज़बान पर अल्लाह मोहर लगा देंगे, मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, अब इंसान का हाथ बोलना शुरू कर देगा, आंख बोलेगी और कान बोलेंगे, इंसान के पांव बोलना शुरू कर देंगे कि हमारे साथ चलकर फलां जगह गया था, इसने हमारे हाथ ने गवाही देनी है, इसने फलां हराम काम मेरे जरिए किया था। अल्लाह फरमाते यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम। एक वक्त वो भी आएगा जब यही ज़बान इस इंसान के खिलाफ गवाही देना शुरू कर देगी, इंसान के हाथ उसके खिलाफ गवाही देना शुरू कर देंगे, इंसान के पांव इसके खिलाफ गवाही देना शुरू कर देंगे। इंसान कहेगा तुम्हारा नास हो, मैं तो तुम्हारी वजह से करता रहा और आज तुम मेरे खिलाफ गवाह बन रहे। कहेंगे हमें उस जात ने बोलने का हुक्म दिया जिस जात ने ज़बान को बोलने की ताकत अता फरमाई। इंसान सोचेगा ना कि पता नहीं हाथ कैसे बोलेगा, तो ज़बान में कौन से स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो भी गोश्त का एक लोतड़ा ही है, बाहर निकाल कर देखो, अपना नजर नहीं है, किसी जानवर के ज़बान को देख लो, उसी तरह के ज़बान अल्लाह ने इंसान को भी दी, इसको बोलने की ताकत दी है, तो वही अल्लाह कल हाथ को भी बोलने की ताकत है। हाथ तो हाथ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात आपने पढ़े होंगे, हिरन ने भी नबी से बातें की, गौ ने भी आकर हुजूर के नबूवत की गवाही दी, दरख्त ने चलकर आकर हुजूर की नबूवत की गवाही दी। बोला है दरख्त ने, अल्लाह जिसको बोलने की ताकत दे, जिसको बोला है। तो एक गवाही जो सबसे बढ़कर गवाही है, हर वक्त मेरा जिस्म मेरे और आपके साथ है, हमारा जिस्म हम में से हर एक के साथ है, हम जहां भी जाए जो करें इसी जिस्म के साथ करते हैं, इसी जिस्म के लिए करते हैं, लेकिन इसने कल हमारे खिलाफ गवाही दी। हाँ, अगर मैंने इस जिस्म के साथ अच्छा काम किया तो अच्छे की गवाही भी इस जिस्म ने दी।
इसने सज्दों की गवाही देनी है, इसने तरावी की गवाही देनी है, इसने कुरान सुनने की गवाही देनी है, इसने कुरान पढ़ने की गवाही देनी है, अच्छी गवाही। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आज दुनिया में जरा भर नेकी कर गया, वो भी कल क़यामत के दिन तेरे सामने लाया जाएगा। और अगर आज दुनिया में कोई जरा भर गुनाह करके उससे तौबा नहीं कर गया, कल क़यामत के दिन उसका वबाल तेरे सामने आ जाएगा। कितने गवाह? 4 कसम के हो गए, एक गवाह और, ये सारे मेरे और आपके खिलाफ गवाह बनेंगे। अगर हमसे कोई गलती हो गई और उस गलती से हमने तौबा ना की, उस गलती से माफी ना मांगी और उस गलती को कब्र में साथ ले गए, क्योंकि मौत के बाद फिर किसी के लिए तौबे का दरवाजा खुला नहीं रहता। मौत के वक्त तक मेरे और आपके पास इख्तियार। एक गवाह और कुरान कहता है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। जिस जमीन पर बैठकर मैं गुनाह कर रहा हूँ, जमीन के जिस हिस्से पर मुझसे गुनाह हो रहा है, जमीन के उस हिस्से ने कल मेरे और आपके खिलाफ गवाही देनी है। तो हद्दिसु अख़बारहा, जमीन का वो टुकड़ा कहेगा, या अल्लाह इस तेरे बंदे ने मुझे नापाक किया था, मुझे गंदा किया था, मुझे तकलीफ पहुंचाई थी, मेरे ऊपर तेरे खिलाफ तेरी नाफरमानी करते हुए। इतने सारे गवाह। और अगर मैंने इसी जमीन पर सजदा किया तो इसी जमीन ने मेरे सजदे की भी गवाही देनी, अच्छी गवाही भी। अब मामला आ गया, अल्लाह माफ फरमाए, बंदा इसी हालत में पहुंच गया, गुनाह उससे हुए और सारी की सारी गवाहियां उसके खिलाफ हो गई। अब मेरे और आपके पास एक ऑप्शन है कि हम अपने लिए कोई तकड़ा या सिफारशी तलाश करिए। कोई मजबूत सा सिफारशी होगा जिस बंदे ने, जो बंदे आमतौर से गल कर यार मेरे को बंदा है तो मत्थे लग जाएगा सारा काम, खुद गल नहीं मोड़ सकता। कोई ऐसे सिफारशी अब मुझे और आपको तलाश करने हैं, उन सिफारशियों को मैंने और आपने अपने साथ रखना है कि कल क़यामत के दिन अगर खुदा न खास्ता मेरे और आपके ऊपर ये मुश्किल पड़ गई और मेरे और आपके खिलाफ गवाही आ गई, तो वो सिफारशी मेरे और आपके हक में सिफारिश कर दे और उनकी सिफारिश कबूल हो और उस सिफारिश की वजह से मेरे और आपके बख्शिश के फैसले होने चाहिए। सिफारिशी के नहीं होने चाहिए। आज हम दुनिया में भी अपने लिए सिफारिशी ढूंढ लेते हैं, दरखास्त दे आते हैं, फिर कोई सिफारिशी वो कोई सिफारिश को आ देंगे यार कम हो जाएगा। तो मेरे और आपके पास जो 2 सिफारिशी है, दुनिया के सिफारिशी का यकीनी नहीं है कि उसकी सिफारिश अगला कबूल कर ले, खुद अगला मान ले, नहीं भी मानता इनकार कर सकता। लेकिन जिन 2 सिफारिशियों के मेरे और आप तक खबर पहुंची है, सच्ची खबर है, सच्चे पैगंबर ने खबर दी है और सच्चे अल्लाह की तरफ से वो खबर आई। कौन से वो 2 सिफारिशी है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान तेरे पास 2 सिफारिशी ऐसे हैं जिनकी सिफारिश अल्लाह के यहाँ कबूल है, जिनकी सिफारिश रद्द नहीं की जाएगी। उनमें नंबर 1 रमजान का रोजा, नंबर 2 कुरान। हुजूर ने फरमाया अस्सौम वल कुरान, रमजान का रोजा और कुरान ऐसे 2 सिफारिशी है जिनकी सिफारिश अल्लाह के यहाँ कबूल है, जिनकी सिफारिश कभी भी रद्द नहीं होगी। अब मेरे और आपके पास मौका है, खतरा तो है भाई कि फंस न जाए, खतरा तो है कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए। चलो बंदा कहे मेरे पास है सिफारिशी, मेरे पास है,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब क़यामत के दिन इस बंदे के ऊपर कोई मुश्किल आएगी, रोजा सामने आ जाएगा, कहेगा अल्लाह मेरी वजह से तेरी फरमाबरदारी में ये बंदा सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहा, या अल्लाह मैं इसके हक में सिफारिश करता हूँ, मेरी सिफारिश उसके हक में कबूल फरमा। तो फरमाया रोजे की सिफारिश अल्लाह कबूल फरमा देगा। कुरान सामने आ जाएगा, कहेगा अल्लाह रात तेरी खातिर, तेरी रजा की खातिर ये मुझे पढ़ता रहा, ये मुझे सुनता रहा, दिन को मेरी तिलावत करता रहा, लोग अपने अपने मसरूफियात में मसरूफ थे, या अल्लाह मैं इसके हक में सिफारिश करता हूँ, इसके मकसद के फैसले फरमा। आपने फरमाया इस कुरान की सिफारिश को अल्लाह कबूल फरमा देंगे और उसकी वजह से बंदे के बारे में फैसला जन्नत का हो जाएगा। अब मैंने और आपने देखना है कि हमने ये दो सिफारिशी अपने लिए कितने एक मजबूत सिफारिशी बनाए। मधुकत सिफारिशी होते हैं लेकिन कमजोर जो सिफारिशी है उन्होंने अपनी अंदर हिम्मत इतनी कोई नहीं होती कि वो आगे सिफारिश बोल सके। वो सिफारिशी को मैंने और आपने तकड़ा करना है, सिफारिशी को मैंने और आपने मजबूत करना है, उस सिफारिशी को मैंने और आपने तवाना करना है। वो सिफारिशी मेरा और आपके पास इस महीने में कुरान, इस महीने में रमजान का रोजा है, रमजान का रोजा। हाँ, एक सिफारिशी और भी मैं और आप बना सकते हैं। जिंदगी में किसी भी वक्त उसको सिफारिशी बना लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी का कोई बच्चा या बच्ची कुरान का हाफिज बन गया, वही हाफिज कल क़यामत के दिन अपने खानदान के उन 10 बंदों की सिफारिश करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। फैसला उनके बारे में जहन्नम का हो गया होगा। वही हाफिज कुरान सिफारिश करेगा, उस जहन्नमी के मुतालिक सिफारिश उससे कबूल कर दी जाएगी और उन्हें सिफारिश की वजह तो अल्लाह उस जहन्नमी बंदे के बारे में जन्नत का फैसला फरमा देंगे। इसलिए पहले तो ये कोशिश हो कि मैं सिफारिशी बन जाऊं, और अगर वो नहीं कर सकता तो अपने लिए बंदा किसी को सिफारिशी बनाए। कल भी मैंने आखिर में बात की थी कि हम कोशिश करते हैं स्कूल 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 से क्या मिलता है, ज्यादा से ज्यादा नौकरी लग गई, रिटायर हो गए, पेंशन मिल गई, घर वापस आ गए। और जो पेंशन मिलेगी वो भी कब तक जी, जब तक जिंदा है। मरने के बाद तो कोई पेंशन नहीं है ना, हुकूमत ने कोई साथ तो नहीं देना। जहां नौकरी की है वो कह रहे चलो यार इसके कागजात इसके कब्र में रख दो, इसके काम आ जाएंगे, नहीं कहीं भी। वो दुनिया है और दुनिया की जिंदगी में उसने काम देना है। और ये जो नमाज है, रोजा है, तिलावत है, कुरान का पढ़ना है, कुरान का पढ़ाना है, कुरान का अपने बच्चे को हाफिज बनाना है, ये ज्यादा काम उस वक्त करेगा जब हम इस दुनिया से, जब कोई और चीज काम नहीं है। वही कुरान सामने कब्र में कुरान पहुंचेगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक तरफ से नमाज, एक तरफ से रोजा, एक तरफ से कुरान, एक तरफ से ज़कात, 4 ही साइड होते हैं ना। ये सारे आकर कहेंगे अल्लाह ये हमारा ख्याल रखता था, कुरान कहता था मेरी तिलावत करता था, रातें जागता था। रोजा कहेगा मुझे इसने रोजा रखा, दिन का भूख प्यास बर्दाश्त करता रहा। ज़कात ने अलग गवाही देनी। और सबने बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम की एक सूरत है जिसको सूरह मुल्क कहा जाता है, उसने ऐसे परिंदे की शक्ल में कब्र में पहुंच जाना है और इंसान के ऊपर पर फैला देने हैं, और जो अजाब वाले फरिश्ते हैं उनको उस मैयत के करीब नहीं आए। मेरी और आपकी तो आदत ही नहीं है सूरह मुल्क पढ़ने। ड्रामा न देखूं मैं, मुझे नींद नहीं आती। फेसबुक में चेक न करूं, मुझे नींद नहीं आती। व्हाट्सएप के मैसेज जब तक मैं न देखूं, मुझे नींद नहीं आती। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं है कि इस सूरह मुल्क ने कब्र में मेरा साथ देना है, जहां पर न मेरे ग्रुप के किसी ने काम आना है, न मेरे किसी दोस्त ने किसी काम आना है, और न मुझे किसी और चीज ने काम देना। 5 मिनट मेरे पास नहीं होते सूरह मुल्क पढ़ने के लिए, 5 मिनट मेरे पास नहीं होते सूरह वाक़िया पढ़ने के लिए, 5 से 10 मिनट मेरे पास नहीं होते सूरह यासीन पढ़ने के लिए।
اب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتابوں میں واقع موجود ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حضور کے ساتھ سفر ہے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، جس جگہ خیمہ ڈالا وہیں پر سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا، حضور نے فرمایا اس قبر میں وہ بندہ دفن ہے جس کے سورہ ملک پڑھنے کی عادت تھی، قبر میں بھی اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمایا سورہ ملک پڑھنے۔ 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا المنجیہ، قبر کے عذاب سے نجات دینے والی سورت۔ یہ قرآن کے ایک سورت کا اعزاز ہے، قرآن کے ایک سورت کا کمال ہے، باقی 114 صورتیں۔ اگر مجھے کوئی کہہ دینا کہ تیرے گھر جادو ہے، تو 41 دن سورہ بقرہ گھر کے اندر تلاوت کرتے کہ نہیں کرتے؟ کر لو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ دنیا کی خاطر ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھئی تو 1 مہینہ روز 2 پارے پڑھنے میں، اتنا ٹائم اتنا کون پڑھے گا؟ جب 2 پارے روز کے پڑھے گا مہینے میں کتنے قرآن ختم ہوں گے؟ 2 ختم ہوں گے۔ اور سورہ بقرہ کوئی 2.5 پاری کی ہے، وہ 41 دن پڑھنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ کسی مولوی نے کسی عامل نے کہہ دیا۔ اور ویسے جہاں قرآن سے رحمتیں اترتی ہیں، رحمتیں برستی ہیں، حضور نے بتلایا، قرآن خود کہتا ہے شفاء لما فی الصدور شفاء للناس خدا و رحمت للمؤمنین خدا و رحمت للعالمین۔ اس طرح میری اور آپ کی توجہ کوئی، اس لیے سب سے بہتر یہ کہ بندہ خود سفارش کا محتاج نہ ہو، بلکہ خود بندہ سفارشی بنے، اور اگر وہ نہیں بن سکا تو کم از کم ہم اپنے خاندان میں اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ کوئی بچی حافظ قرآن بنا کر اس کو اپنے لیے سفارشی بنے۔ لیکن یہ بھی نہیں، آج کل ہمارا بہت ٹرینڈ چلا ہے کہ بچے کو حافظ قرآن بنانے کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو حافظ قرآن بنے رہنے نہیں دیں۔ حافظ تو بن گیا، لیکن قرآن حدیث میں جو فضیلت ہے اور حدیث کا جو اعلان ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن یاد کیا اور اس کی زندگی قرآن کے مطابق رہی، قرآن کے مطابق گزری، یعنی کہ قرآن حافظ تو بن گیا، مدرسے سے باہر آ گیا تو نہ داڑھی نہ سر پر ٹوپی، وہی پینٹ شرٹ، بلکہ اب تو کئی حافظ ہمارے اپنے چک کے قرآن اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم نے میٹرک کا امتحان دینا ہے۔ 1-2 کے والدین سے میں ملا، میں نے کہا یار خدا کا غضب نہیں اترے گا تو اور کیا ہوگا، ابھی میٹرک کا امتحان آنا باقی ہے، وہ ابھی دینا ہے، اور اس کی وجہ سے میں قرآن چھوڑے بیٹھا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں، جس مہینے میں جس پر نازل ہوا قرآن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل کے ساتھ دور کیا کرتے، یہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، لیکن دین کی خاطر، اسکول کی خاطر میں قرآن کو پس پش ڈال لیتا ہوں، قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں، اور اسکول کا ورک کا اور ہوم ورک کا پتہ نہیں کیا کیا۔ الحمدللہ وہ اسکول بھی بند ہو گئے، نہ بانس رہے نہ بانسری بچے۔ کدھر کو ہم جا رہے ہیں؟ ہم نے سارے کی سوچ رکھے، ذرا اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میرے پاس آیا کوئی سفارشی ہے، میں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے کوئی سفارشی بنایا جو میرے مرنے کے بعد میری سفارش کر سکے، جس کی سفارش مقبول سفارش، جس کی سفارش قبول سفارش۔ اس لیے جب بچے کو حافظ بنانے کا ارادہ ہو تو پھر اس کو حافظ ہی کے لائن پر رہنے دیا جائے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے اچھا کھائے گا، اچھا پہنے گا، اچھا رہے گا اور عزت سے رہے گا۔ ہم یہ سوچ کرنا کہ جو حافظ بنے گا تو پھر کھائے گا، دوسری طرف سے کہتے بھی کھا گئے تو مولوی، عجیب معاملہ، ایک بھی حال میں رہنے یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ قرآن کی وجہ سے، دین کی برکت سے اللہ اس کو، آپ کے بچے کو اتنا اعزاز اور اتنا مقام عطا فرمائیں گے کہ ملک کا صدر وزیر اعظم ہوگا وہ بھی نیچے بیٹھے گا، اور آپ کا بچہ حافظ قرآن عالم دین ہوگا تو وہ کہاں بیٹھے گا؟ ممبر اور کرسی اور صوفے کے اوپر بیٹھے گا۔ اس
اس لیے جو بچہ حافظ قرآن بنے اس کو پھر حافظ کے لائن میں رہنے دیا جائے، وگرنہ جب لائن تبدیل کرے گا اس لائن کو چھوڑے گا پوری زندگی پھر ٹکری مارے گا، کوئی بھی کام اس کا بنے گا۔ اس لیے آج کے درس کے خلاصے کے طور پر پھر بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ طائب ہونا ہے، اپنے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی رات کو معافی مانگ کر سونا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی گناہ ہمارے ساتھ اللہ معاف فرمائے گئے تو کل قیامت کے دن ہمارے خلاف کتنی گواہی آئیں گی، فرشتوں کی گواہی الگ ہوگی، انبیاء کی گواہی الگ ہوگی، لوگوں کی گواہی الگ ہوگی، اور اپنے آپ کے اعضاء کی گواہی الگ ہوگی، اور زمین کی گواہی۔ اتنے گواہوں میں پھر بچنا مشکل ہے۔ ہاں، اپنے بچاؤ کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ساتھ سفارشی رکھنے ہیں، اور وہ سفارشی میں اور آپ اپنے لیے کیا بنا سکتے ہیں؟ روزہ بھی سفارشی بنا سکتے ہیں، قرآن بھی سفارشی بنا سکتے ہیں، حافظ قرآن کو بھی اپنے لیے سفارشی بنا سکتے ہیں، اور عالم دین کو بھی اپنے لیے سفارشی بنا سکتے ہیں، اور شہید کو بھی اپنے لیے سفارشی بنا سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ قیامت کے دن کے سوال رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کل کریں۔